Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel Rajni Classes. Today I will discuss the topic ecological engineering with you. What is ecological engineering? What are the different attributes of ecological engineering from where this term came? All these things we will discuss here. There are various questions that came from this topic, ecological engineering. Like in December 2019, there is a question, what are the major attributes of restored ecosystem? Came from this topic in UGC NET examination. There was another question that came in June 2019. Select the key attributes of restored ecosystem. And at December 2017, there was a question, factors responsible for restoration of ecosystems. Then there is another question that came from this topic is the adaptive management of ecosystem restoration program undertaken by. So all these things, all these questions came from this topic ecological engineering. So these things we will discuss here. There is another question that came from the topic, that is the intermediate disturbances. Intermediate disturbances is responsible for increase of biodiversity or decrease of biodiversity or for variation in species, all these things. So this type of 4 or 5 questions came in 2019 December and June from this topic. So we will discuss today this topic, ecological engineering, or we can say restoration ecology. So SER is Society for Ecological Restoration. What is SER? SER define ecological restoration as the process of assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged or destroyed. यानी कि SER के according, Society for Ecological Restoration के according, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी डिग्रेडेड, डैमेज्ड या डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम को रिकवर कर सकते हैं. कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी इकोसिस्टम डिग्रेडेड हो गया है, डैमेज हो गया है या डिस्ट्रॉयड हो गया है? जब ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता है तो, यानी कि इसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी जितनी होनी चाहिए उतनी ना हो, डिग्रेड हो जाए, इसका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाए. ये सारे कुछ की पॉइंट्स है जिनके थ्रू हम बता सकते हैं कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर या फंक्शन डैमेज हो गया है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाए. सो सोसाइटी ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के अकॉर्डिंग 9 बेसिक क्राइटेरिया हैं रेस्टोर्ड इकोसिस्टम के. नाउ ऑन द इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग. Ecological engineering is an integrated study of ecology and engineering. Ecological engineering दो शब्दों से मिलकर के बना है, ecology और engineering, जहां पर हमारी emphasis 3 चीजों पे होती है. First is designing, second is monitoring and third is construction of ecosystem. Means we can design for a new ecosystem or redesign for a old or perturbed ecosystem. We can go for monitoring program or monitoring of जो भी हम restoration process कर रहे हैं उसकी monitoring, or construction of ecosystem. The design of sustainable ecosystem intend to integrate human society with its natural environment for the benefit of both. So ecological engineering का main aim ये होता है कि हम जो भी designing करें या मॉनिटरिंग करें या इकोसिस्टम का कंस्ट्रक्शन करें उसमें हम ह्यूमन सोसाइटी को जरूर ध्यान में रखें, और वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए एज वेल एज नेचुरल एनवायरनमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, तभी इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो है वो रिलेवेंट होगा. First time in 1960s, H.D. Odum has given the definition of ecological engineering. According to him, those cases in which the energy supplied by man is small relative to natural sources but sufficient to produce large effect in the resulting pattern and process. In Odum के according, कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू लगाया गया एनर्जी, यानी कि रेस्टोरेशन के लिए लगाया गया एनर्जी स्मॉल है कंपेयर टू द नेचुरल एनर्जी, लेकिन वो इतना सफिशिएंट है कि ये डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम है उसके अंदर कई तरह के चेंजेस कर दे, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर दे. सो सफिशिएंट टू प्रोड्यूस लार्ज इफेक्ट इन रिजल्टिंग पैटर्न एंड प्रोसेस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग. Mist and Georgeson was again Mist and Georgeson were the
renowned ecological engineers, and according to them, the ecological engineering is designing societal services such that they benefit society and nature, and the design should be system based, sustainable, and integrate society with its natural environment. They summarize their definition or concept into 5 concepts. First thing, it can be based on self designing capacity of the ecosystem, यानी कि जो भी इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग या रेस्टोरेशन किया जाए वो सेल्फ डिजाइनिंग कैपेसिटी उस इकोसिस्टम की है. दूसरा, इट कैन बी अ फील्ड टेस्ट ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी. जो भी इकोलॉजिकल थ्योरी या जो भी हम इकोलॉजिकल कंसेप्ट हमने लैब में बनाया है या डिपार्टमेंट में बनाया है या हम अपने उसमें बनाया है, वो फील्ड टेस्ट होनी चाहिए उस इकोलॉजिकल थ्योरी की. जैसे कि हमने कहा कि जो ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी जहाँ पे रहेगी वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, तो ये फील्ड में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. इट रिलाइज ऑन इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच. इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच हमेशा ही जितना है कॉम्प्लेक्स हमारा सिस्टम रहेगा उतना ज़्यादा जो होगी उसकी स्टेबिलिटी होगी. तो इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच पे ये डिपेंड होना चाहिए. इट कंजर्व्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि इसकी डिपेंडेंसी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे कम होनी चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे ज़्यादा होनी चाहिए. यानी कि इसका एम जो होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज इट सपोर्ट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर सके. तो ये 5 कंसेप्ट जो है मिस्टर एंड जॉर्जसन के अकॉर्डिंग इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स हैं. There is a term ecotechnology. Ecotechnology term is synonyms to ecological engineering. कभी कभी ecotechnology term पूछा जाता है, ये भी ecological energy engineering का ही synonyms माना जाता है. 1980s में ईस्टर्न यूरोप में, अर्ली 1980s में ईस्टर्न यूरोप में इसको पहली बार यूज़ किया गया. और ecotechnology के अकॉर्डिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल मीन्स for the ecosystem management based on deep ecological understanding to minimize the cost at their half of the environment. ठीक है, यानी कि जो भी जो कॉस्ट हो वो बहुत ही कम कॉस्ट में टेक्नोलॉजिकल मींस के यूज के थ्रू इकोसिस्टम को हम मेंटेन करें, दैट इज कॉल्ड इको टेक्नोलॉजी. सो इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स डिजाइन, कंस्ट्रक्शन and management of ecosystem that have value of both ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनवायरनमेंट. यानी जब भी हम इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे या रेस्टोरेशन की बात करेंगे तो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए. वो प्रोसेस या वो पैटर्न या उसका जो भी रिजल्टेंट है ह्यूमन के लिए और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए. इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग कभी भी हमें सिविल इंजीनियरिंग टर्म के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग टर्म. इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड फिजिकल केमिकल एनवायरनमेंट to achieve specific human goals and solve technical problems, whereas civil engineering relies on human-made materials such as steel and concrete. And productivity is the primary consideration in all engineering design. So ecological engineering में जो हमारे tools हैं वो क्या है, लिविंग एंटिटीज हैं या फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट है या नेचुरल मटेरियल्स हैं. जबकि सिविल इंजीनियरिंग में ह्यूमन बेस्ड मटेरियल्स जो हैं हमारे टूल्स हैं, जैसे कि स्टील है, कंक्रीट है. लेकिन चाहे वो इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग हो या सिविल इंजीनियरिंग हो, दोनों में हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है क्या है, प्रिडिक्टेबिलिटी. रेस्टोरेशन रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट एंड एड्रेसेस गोल्स दैट रीच बियॉन्ड स्ट्रिक्ट पैराडिग्म्स एंड encompasses biodiversity and ecosystem integrity and. अब गोल्स ऑफ इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्या क्या है. इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के 2 बेसिक गोल्स हैं जो कि मिस एंड जॉर्जसन ने बताया था, बट ओवरऑल देयर आर 3 गोल्स ऑफ इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग. First is the restoration of ecosystem that has been disturbed by human activity. तो सबसे पहला एम ये है कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा किसी भी तरह की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा, चाहे पोल्यूशन हो या लैंड डिस्टर्बेंस हो, लैंड यूज चेंजेस हो, किसी भी फैक्टर के द्वारा अगर कोई इकोसिस्टम डैमेज हो गया है या डिस्टर्ब हो गया है तो उसको रेस्टोर करना, ये पहला एम है इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का. एंड द सेकेंड गोल इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सस्टेनेबल इकोसिस्टम्स दैट हैव ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल वैल्यू. और पहला तो ये है कि अगर वो डैमेज हो गया है तो उसको
रेस्टोर करना, दूसरा है कि वो डैमेज नहीं हुआ है लेकिन वहाँ पे उस सिस्टम में या वहाँ के सोसाइटी को एक नए सस्टेनेबल इकोसिस्टम का डिमांड है, तो नए इकोसिस्टम का, नए सस्टेनेबल इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करना दूसरा गोल है। तीसरा है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ सपोर्ट्स value of ecosystem to ultimately lead to their conservation, construction and restoration of ecosystems need to be done in ecologically sound way। और तीसरा ये है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई करके जो कि इकोसिस्टम के लिए वैल्यूएबल हो उनको कंजर्व करना, कंस्ट्रक्ट करना और इकोसिस्टम में रेस्टोर करना, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है या उससे लिंक ह्यूमन सोसाइटी है वो कंजर्व रह सके, रेस्टोर हो सके। गाइडलाइन ऑफ डिजाइनिंग, किस तरह से हम किसी भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम की डिजाइनिंग करेंगे, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या गाइडलाइन है, यानी कि क्या क्या स्टेप्स हैं रेस्टोरेशन के। पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यानी कि सेटिंग ऑफ गोल। सबसे पहला लक्ष्य है कि हम जब भी रेस्टोरेशन करने जाते हैं या इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज टू द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। इट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग ऑन एट रिस्क इकोसिस्टम, restoring a degraded ecosystem or creating new sustainable ecosystem to satisfy need of natural and society। यानी कि पहला जो एम है किसी भी इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का वो है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या गोल सेट करना, कि हमें करना क्या है, हमें क्या डैमेज डिस्टर्ब हो गया है इकोसिस्टम तो उसको रिस्टोर करना है, या हमें नया इकोसिस्टम बनाना है, या हमें वहाँ के जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उनको आइडेंटिफाई करके ही सिर्फ रिस्टोर करना है। सो ये गोल बनाना। दूसरा है प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी कि कौन कौन से कॉन्स्टेंट हैं जो कि बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं या रेस्टोरेशन को रोक सकते हैं। थर्ड इज अल्टरनेटिव सोल्यूशन सर्च, यानी कि हमने 2, 3, 4 ऑप्शंस के बीच में सर्च करना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और देन go for that best option, यानी decision among alternatives। and last step is the specification of a complete solution, और फिर उसके बाद से उसका एक complete solution लेके आना है। There is a difference between conventional engineering and ecological engineering. This is the diagram that shows the concept of conventional engineering. This is for the ecological engineering. Ecological engineering is frequently applied as various countries under different names with different emphasis, like ecological engineering. Another name of ecological engineering is ecological restoration, or we can say ecosystem repair, biomanipulation, natural technology, eco-technology, bioengineering and nature restoration. So all these are synonyms of ecological engineering. How it is different from conventional engineering? In conventional engineering there is major dependency on the fossil fuels, means it depend on its major dependency on the non-renewable resources, whereas in ecological engineering there is less dependency on the fossil fuel, or we can say non-renewable energy resources. Here the natural energies is every time given to the system for their processes to for doing the processes, whereas in ecological engineering concept सिर्फ very less amount of natural energy is giving to the ecosystem, यानी कि जो हमारा इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का मेन एम्फेसिस होता है वो सेल्फ डिजाइनिंग पे कंसेप्ट, सेल्फ डिजाइनिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। यानी कि पहला डिफरेंस है लेस डिपेंडेंसी ऑन दी फॉसिल फ्यूल, सेकेंड इज दी जो नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका यहाँ पे कम से कम यूज हो रहा है, यानी एक बार सिस्टम में वो एंटर हो गए तब फिर उसके बाद से वो सिस्टम जो है सेल्फ डिजाइनिंग इज द थर्ड स्टेप, and the both aim is to services to the society. So इस तरह से डिफरेंस है कन्वेंशनल इंजीनियरिंग एंड इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के बेस पे। restoration of degraded ecosystem. What is the restoration? Restoration is the process of manipulating a disturbed ecosystem to obtain compositional, structural and functional patterns similar to the pre-disturbed condition। यानी कि रेस्टोरेशन प्रोसेस के थ्रू हम डिस्टर्ब इकोसिस्टम को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट करते हैं ताकि कंपोजिशनल फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में और फंक्शनल पैटर्न के फॉर्म में प्री डिस्टर्ब इकोसिस्टम कंडीशन में वो पहुंच जाए, इकोसिस्टम हमारा पहुंच जाए।
Now come on the very important topic of this very important segment of this topic, that is the ecological attributes of restored ecosystem. What are the ecological attributes? In 2004, according to Society for Ecological Restoration, there are 8 to 9 ecological attributes. Means Society of Ecological Restoration ने 2004 में 8 ecological attributes identified किए थे. लेकिन 2013 में क्लीवेल एंड अरनसन जो साइंटिस्ट थे, एक्चुअली क्लीवेल एंड अरनसन ने भी कंट्रीब्यूट किया था सर के रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में, और इन लोगों ने ही 8 इकोलॉजिकल एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई किए थे, और बाद में इन लोगों ने 3 और इकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जोड़ करके टोटल 11 इकोलॉजिकल एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई किए, जो कि रेस्टोर्ड इकोसिस्टम को आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि इकोसिस्टम सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया कि नहीं. So now here we discuss the 11 ecological attributes of restored ecosystems. The first 4 are directly attainable attributes that manifest in response to biophysical interventions conducted by practitioner and restoration project sites. So कभी कभी क्वेश्चन ये आता है नेट के एग्जाम में कि what are the major 4 attributes of restored ecosystem. So ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डायरेक्टली अटेनेबल एट्रीब्यूट्स हैं. कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर डायरेक्टली अटेनेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ रेस्टोर्ड इकोसिस्टम. तो यही फर्स्ट 4 एट्रीब्यूट जो है डायरेक्टली अटेनेबल एट्रीब्यूट्स हैं, या वी कैन से मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ रेस्टोर्ड इकोसिस्टम है. सो दीज एट्रीब्यूट्स इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट स्पीसीज कंपोजिशन एज डिटरमिन्ड बाय द रेफरेंस मॉडल. तो पहला जो है वो एट्रीब्यूट है एप्रोप्रिएट स्पीसीज कंपोजिशन as determined by their reference model. Initial development of community structure. So दूसरा development of community structure जो है वो है an abiotic environment that support the biota. Third ये है and the landscape context that facilitate normal flows and exchanges organisms and material with surrounding area that lack threat to restored ecosystem. यानी कि किसी भी रेस्टोर्ड इकोसिस्टम के जो 4 मेजर एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कि हम डायरेक्टली अटेनेबल एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, वो है एप्रोप्रिएट स्पीसीज कंपोजिशन, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, एबायोटिक एनवायरनमेंट एंड लैंडस्केप कंटेक्स्ट. जो और बचे हुए 7 एट्रीब्यूट्स हैं आर इनडायरेक्टली अटेनेबल. ये जो 7 एट्रीब्यूट्स हैं ये डायरेक्टली अटेनेबल नहीं है, ये इनडायरेक्टली अटेनेबल एट्रीब्यूट्स हैं. Means they appear or emerge on account of interaction of organisms with each other and their abiotic environment, and not because of the manipulations conducted by practitioner at a project site. हाँ, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इनडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स इंक्लूड द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इकोलॉजिकल फंक्शनलिटी in terms of ecological processes, the re-establishment of historic continuity, development of ecological complexity and capabilities of self-organization, resilience, self-sustainability and biosphere support. So unlike direct attributes, the indirect attributes are not readily measured and documented. यानी कि ये जो शुरू के 4 attributes हैं यही डायरेक्टली मेजर किए जा सकते हैं और डॉक्यूमेंट किए जा सकते हैं, और उनके इंटरफेयर से ही इनडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स जो है वो निकाले जा सकते हैं. अब शुरू के हम 7 एट्रीब्यूट्स को करेंगे. सो ये देखिए, ये एक डायग्राम है, कंसेप्चुअल डायग्राम है. कोनेल ने ही बताया था 2013 में कि किस तरह से ये 11 एट्रीब्यूट्स हैं और वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं. फर्स्ट वन इज द इकोलॉजिकल कंपोजिशन. सेकंड जो ब्लू कलर के पेन से लिखा हुआ है वो है हमारा डायरेक्ट अटेनेबल एट्रीब्यूट्स जो 4 हैं, और ये जो या हम कह सकते हैं कि मेजर एट्रीब्यूट्स हैं. ये जो क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द मेजर एट्रीब्यूट्स, तो इसमें से आपको क्या करेगा कि 3 आंसर दे देगा. अगर मेजर क्वेश्चन में आएगा व्हाट आर नॉट मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ रेस्टोर्ड इकोसिस्टम, तो उसमें स्पीसीज कंपोजिशन दे देगा, कम्युनिटी स्ट्रक्चर दे देगा, एबायोटिक एनवायरनमेंट दे देगा, और लैंडस्केप कंटेक्स्ट की जगह आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन दे देगा. तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन आपका मेजर एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि आप इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको आप एसेस कर सकते हैं.
सो आपका कम्युनिटी कंपोजिशन सही आंसर होगा, स्पीसीज कंपोजिशन सही होगा, एबायोटिक एनवायरनमेंट सही होगा, लेकिन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है तो ये ऑड हो जाएगा। इसको आप लोग बता देंगे कि ये एक जो है इकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, मेजर इकोलॉजिकल एट्रीब्यूट नहीं है। सो दीज आर द इकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सो फर्स्ट वन इज द डायरेक्टली अटेनेबल एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो शुरू के 4 हैं डायरेक्टली अटेनेबल एट्रीब्यूट्स हैं, वो है स्पीसीज कंपोजिशन। This is the first basic level of any ecosystem, and species composition should be a primary concern for practitioner. So the restored ecosystem contain a comprehensive assemblage of potentially co-adapted species as informed by the reference model. यानी कि किसी भी इकोसिस्टम का जो पहला है स्पीसीज कंपोजिशन, वो बेसिक लेवल है, यानी कि अगर हम किसी इकोसिस्टम को रेस्टोर कर रहे हैं तो उसका स्पीसीज कंपोजिशन जैसा रेफरेंस इकोसिस्टम का था लगभग वैसा ही होना चाहिए। और sometimes we can use a substitute or proxy species in place of native species। हाँ, उसका substitute और proxy species भी हम native species की जगह यूज कर सकते हैं। कंप्रिहेंसिव स्पीसीज क्या होता है? कंप्रिहेंसिव स्पीसीज इंडिकेट अ कंपोजिशन, ये देखिए ये टर्म है, ये टर्म्स जो है अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये टर्म भी एग्जाम में आते हैं। कंप्रिहेंसिव स्पीसीज indicate a composition that closely resemble that which would have existed pre-impairment. Sometimes plant substitute can be justified ecologically। यानी कि इसका जो comprehensive species है, इसका composition जो pre-impairment species है, जो पहले species वहाँ थी उससे काफी मिलता जुलता होता है, तो उसको comprehensive species कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या किसे कहते हैं, या फंक्शनल स्पीसीज किसे कहते हैं? वो स्पीसीज दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर रोल इन इकोसिस्टम, एक किसी इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर रोल प्ले करती है, वो फंक्शनल ग्रुप ऑफ स्पीसीज कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी इकोसिस्टम में अगर हम ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे डिवाइड करें तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी कार्निवोर्स हैं वो एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उनके इकोसिस्टम में पर्टिकुलर रोल के बेसिस पे हम उनको एक ग्रुप में रखते हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अगर मान लीजिए अगर हम कहें कि कुछ स्पीसीज जो है फ्लावर मतलब बड प्रोड्यूस करती हैं, या कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं, तो एग गिविंग एनिमल्स जो होगा वो एक फंक्शनल ग्रुप में होगा। बर्ड जो बच्चे पैदा करते हैं, या सीधे बर्थ होता है, बच्चों का अंडा नहीं होता, तो वो एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप होता है। देन रुडेनेंट स्पीसीज, रुडेनेंट स्पीसीज मेनी सिस्टम कंटेन फॉर मोर species than necessary to carry out particular role। बहुत सारे species, many species contain more species than necessary to carry out particular role is called redundant species। देन सेकेंड जो है वो आपका डायरेक्ट अटेनेबल स्ट्रक्चर है कम्युनिटी स्ट्रक्चर। कम्युनिटी स्ट्रक्चर स्पीसीज पॉपुलेशन आर एस्टैब्लिश्ड इन सफिशिएंट अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द प्रोजेक्ट साइट एडिक्वेटली टू फैसिलिटेट स्ट्रक्चर। सो कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है आपका दूसरा है। एबायोटिक एनवायरनमेंट has the physical capacity to sustain the biota or restored ecosystem। यानी कि अगर हम किसी इकोसिस्टम को रिस्टोर कर रहे हैं तो एबायोटिक एनवायरनमेंट उसका ऐसा होना चाहिए कि वो उस रेस्टोरेशन को सस्टेन कर पाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि हमने प्लांटेशन कर दिया वहाँ पर जाकर के, उसी सेम स्पीसीज को रीप्लांट कर दिया, लेकिन क्या वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी वैसी है, या वहाँ का वाटर कंपोजिशन या वहाँ का वाटर लेवल ऐसा है कि वो स्पीसीज को सस्टेन कर पाएगा? तो जो तीसरे इंपॉर्टेंट है एट्रीब्यूट्स इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का है, वो उसका है एबायोटिक एनवायरनमेंट। एबायोटिक एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि स्पीसीज कंपोजिशन को या कम्युनिटी स्ट्रक्चर को सस्टेन करे। Fourth है landscape context. The restored ecosystem is suitably integrated into a larger ecological matrix or landscape with which it interacts through abiotic and biotic flow and exchanges as informed by the reference model। So landscape context का मतलब है कि सिर्फ एक कन्फाइन एरिया में ही स्पीसीज रिस्टोर्ड ना हो, पूरा का पूरा एंटायर लैंडस्केप जो हो वो सस्टेन हो जाए, ताकि जो भी बायोटिक और एबायोटिक फ्लो जो है एडजॉइनिंग एरिया से हो वो भी सस्टेन रहे और हमारा इकोसिस्टम जो है स्टोर हो जाए। देयर आर वेरियस इनडायरेक्टली अटेनेबल एट्रीब्यूट्स, दीज आर इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी, historic continuity and ecological complexity। Ecological functionality means ecological processes in which the restored ecosystem occur normally for its ecological stage of development।
So functionality is the reshortment of ecological processes that occur when living organisms interact with one another and their environment. देन हिस्टोरिक कंटिन्यूटी, यानी कि हिस्टोरिक कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कि जैसा बायोडाइवर्सिटी पहले था वैसा ही हो जाए, उसी के कंटिन्यूटी में बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो जाए. और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हो जाए कि इकोसिस्टम जो है उसी तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाए जैसा कि रिस्टोर्ड इकोसिस्टम था. नेक्स्ट है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, यानी कि जो भी इकोसिस्टम डेवलप हो, feedback loops that increases its capacity to conserve its resources and increases its potential for autonomy, यानी कि ये towards autonomy की तरफ जाए. बार बार हमको इसमें आकर के मैनिपुलेशन ना करना पड़े, सॉइल की कंडीशन को इम्प्रूव ना करना पड़े, यानी कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज की तरफ से धीरे धीरे डेवलप होते होते पहले मिक्स आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज आए, फिर मिक्स आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज आए, और धीरे धीरे इनकी के सेलेक्टेड स्पीसीज पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाए. फूड चेन पहले डेवलप हो और धीरे धीरे वो फूड वेब के फॉर्म में डेवलप हो जाए. धीरे धीरे एनिमल्स आए और बाद में प्रेडेटर प्रे सिनेरियो डेवलप. इकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर ऑफ ecosystem. There are various terms that used in this restoration ecology, like the restoration, reclamation and rehabilitation. Restoration, as I discussed, is the replication of site condition prior to disturbances, यानी कि जैसा disturbance था वैसे ही कंडीशन में ये आ जाए, डिस्टर्बेंस से पहले जैसा साइट था वैसे ही कंडीशन में आ जाए, तो उसको रेस्टोरेशन कहते हैं. लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव रेस्टोरेशन, सो हम उस साइट को ही हैबिटेबल बना दे इंडिजिनस ऑर्गेनिज्म के रहने लायक, तो वो कंडीशन रिक्लेमेशन कहलाती है. रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि अपने फॉर्म और प्रोडक्टिविटी के टर्म में इकोसिस्टम जो है पहले की तरह हो जाए, तो वो रिहैबिलिटेशन कहलाता है. Revegetation का मतलब होता है planting or seeding of an area that has received minor damage. We can again on the basis of restoration can divide into the full restoration, partial restoration or creation of an alternative ecosystem type. Then there is another terms like the mitigation, creation and fabrication also in restoration ecology. So this is all about ecological engineering, or we can say restoration ecology. Hoping that you will like this lecture. And major thing, the ecological attributes of restored ecosystem. If